Yes, beta, as you can see, this is your page number 89, third video of chapter number 10. I'm Malala by Malala Yousafzai. Let's start. The school had expanded a lot by then and had 3 buildings. The original one in Landikas was a primary school. So now there's a description of the school given, okay, where the father of Malala works, right? So it is talking that this land belongs to primary school and there was a high school for girls. एक high school है girls के लिए. कहाँ पे है? यहाँ street के अंदर है. One for boys with एक boys के लिए भी है जिसके पास बहुत बड़ा garden है near the remains of the Buddhist temple. It's easy. So we had about 800 students in total. Although the school was not really making money, my father gave me more than 100 free places. Means school में total लगभग 800 students हैं. Because why the school is not making money? Because my father has helped many children free of cost. They were admitted to school free of cost, like 100 of students were there. So one of them was a boy. एक और description है किसी boy की, that was to a boy whose father is शराफत अली. ठीक है ना. अब एक boy की description हो रही है जिसके father का नाम शराफत अली है. Had helped my father when he was penniless college student. मतलब जब मेरे father के पास पैसे नहीं थे तब शराफत अली ने मेरे पापा को उस टाइम पैसे दिए थे. ठीक है ना. तो उसका बॉय भी, मतलब उसके बेटा भी हमारे स्कूल में पढ़ता है. Who says this? Malala says this. They were friends from the village. Sharafat Ali worked at the electricity company and he would give my father a few hundred rupees whenever he could spare them. मतलब जब उनको ज़रूरत होती थी तब वो मेरे फादर को कुछ पैसे देते थे. My father was happy to be able to repay his kindness. अब जब my father is now working in a school, so now my father can repay the kindness shown by Sharafat Ali during the college days. So another was a girl. So that's why his son was admitted in the school. So एक और girl की description है. देखिए, another was a girl in my class called Kausar. एक Kausar की description है. Whose father embroidered. Embroidery means कढ़ाई. बेटा सूटों पे कढ़ाई होती है ना. Let's turn the paper, page number 90. Cloths and shawls, a trade our region is famous for. मतलब कि एक लड़की है हमारी क्लास में, मलाला says that, है ना. सो जिसके फादर जो हैं वो क्लोथ्स और शॉल्स पे एम्ब्रॉयडरी करते हैं. बिकॉज आई हैव टोल्ड यू स्वैट वैली इज इन पाकिस्तान, है ना. सो एंड पाकिस्तान इज वेरी मच फेमस फॉर एम्ब्रॉयडरी पार्ट ऑफ थिंग्स. When we went on school trips to visit the mountains, I knew she couldn't afford them, so I could repair. What happens? कौसर जो हैं उनके फादर जो हैं क्लोथ्स पे कढ़ाई करते हैं, एम्ब्रॉयडरी करते हैं. तो जब भी मलाला कहते हैं we were having trips in the school, so she could not afford the fees, yeah, you can say she can't pay for the trips, so Malala used to help her. Means the girl name is Kausar. Now let's read next. Giving places to poor children didn't just mean my father lost their fees. देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि मलाला सेज कि हम हेल्प कर रहे थे. माई फादर वॉज हेल्पिंग एवरी बडी हु इज नियर लिविंग इन द स्वैट वैली. इट इज़ नॉट बिकॉज वी आर लिविंग द फीस, है ना. वी आर लूजिंग द फीस. सम ऑफ द रिच पेरेंट्स टुक देयर चिल्ड्रन आउट ऑफ द स्कूल व्हेन दे. क्या हुआ है, क्या पे इंसिडेंट बताते हैं कि रिच पेरेंट्स जो थे, जो अमीर लोग थे, उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल से हटा लिया था. बिकॉज दे डिड नॉट लाइक दैट कि उनके जो बच्चे हैं वो गरीबों के बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं. सो दिस वॉज नॉट लाइक दिस. ऑल रिटन, यू कैन रीड देम. हु क्लीन देयर हाउसेज एंड स्टिच देयर क्लोथ्स. दे थॉट इट वॉज शेमफुल फॉर द चिल्ड्रन टू मिक्स विद दोज पुअर फैमिलीज, राइट. सो माई मदर सेड इट वॉज हार्ड फॉर द पुअर चिल्ड्रन टू लर्न व्हेन दे वर नॉट गेटिंग फूड इनफ फूड एट होम. सो सम ऑफ द गर्ल्स वुड कम टू अ हाउस फॉर ब्रेकफास्ट. मतलब इस पे मेरी मदर कहती थी कि दे हैव टेकन देयर चिल्ड्रंस, है ना. दे हैव नॉट, दे डोंट लाइक कि हमारे जो बच्चे हैं वो पुअर बच्चों के साथ कैसे एक क्लासरूम शेयर कर सकते हैं. तो मेरी मदर कहती हैं कि ये बच्चे तो खाना अफोर्ड नहीं कर पाते, तो एजुकेशन तो दूर की बात है. तो इसलिए वो खाने के लिए भी हमारे घर पे आते थे. माई फादर जो हमारा घर है वो एक बोर्डिंग हाउस बन गया है. ठीक है. व्हाट्स हैपन नेक्स्ट. Having so many people around made it hard to study. अब now Malala says that कि मेरे घर पे इतनी ज़्यादा, मतलब because I have to study and there are so many people, है ना. There are so many people around me, so it was hard for me. I had been delighted. Delighted means happy to have my own room. My father had even bought me a dressing table to work on. मतलब मेरे को खुद का रूम दिया गया, ड्रेसिंग टेबल दिया गया. Malala says
एंड आई हैड 2 अदर गर्ल्स इन माई रूम, 2 लड़कियाँ और थी मेरे रूम में. आई वॉन्ट स्पेस, आई वुड क्राई, बट देन आई फेल्ट गिल्टी. जब मुझे ये पता लगा कि दैट वी आर हेल्पिंग समवन एंड इट इज़ द द बिगेस्ट काइंडनेस शोन ऑन द अर्थ. So I felt somehow lucky. I thought back to the children working on the. फिर मुझे वही याद आता है कि वो उन बच्चों की याद आती है जो कि उस रबिश माउंटेन के अराउंड काम कर रहे थे, है ना. They were sorting those things, canes, papers, glass. No, dirty face of the girl उसके सामने आ जाता है और उसको वो कंटिन्यू पेस्टर करता रहता है. पेस्टर मीन्स इरिटेट करता रहता है ना. माई फादर टू गिव देम प्लेसेस एट अवर स्कूल. फिर मैं उनको मतलब अपने फादर को कहती रहती हूँ कि प्लीज़ यू नीड टू हेल्प those people also, those I've seen around the garbage dump. Let's do the next part. He tried to explain that those children were breadwinners, so if they went to school even for free, the whole family would go hungry. However, he got wealthy philanthropist Azade Khan to pay for him to produce a leaflet asking, क्या सूल इल्म इन बच्चों का हक नहीं? Is education not the right of these children? My father printed thousands of these leaflets, left them at local meetings and distributed them around town. What happens? यहाँ पे क्या हुआ बेटा, मेरे फादर ने एक्सप्लेन मुझे किया कि ये बच्चे अगर स्कूल फ्री में भी इनको पढ़ा दिया जाए तो ये इनकी फैमिली के लिए ये चीज़ बुरी है, बिकॉज वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कमा रहे हैं, खाना खाने के लिए, सर्वाइवल के लिए, है ना. तो इसी दौरान उनको एक वेल्दी फिलांथ्रोपिस्ट मिले. फिलांथ्रोपिस्ट मीन्स हु आर रेडी टू हेल्प द पुअर पीपल, है ना, बाय गिविंग मनी. वो आज़ादे खान थे. उन्होंने मेरे फादर को हेल्प किया था क्या प्रिंट कराने के लिए. उन्होंने एक लीफलेट्स प्रिंट कराए थे जिस पे लिखा था कि एजुकेशन जो है वो क्या इन बच्चों का हक नहीं है, इन पुअर बच्चों का हक नहीं है, है ना. और ये पूरे टाउन में बांटे गए, मीटिंग्स में बांटे गए, सब जगह बांटे गए. सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस. फॉर द नेक्स्ट वीडियो यू हैव टू सी द नेक्स्ट वन.